So everyone note down the first doubt of today's class is number I का number 12. So here instead of taking LHS, I am taking RHS and then I will be solving that it is equals to LHS. So everyone note down the problem which I am finding in this particular sum is the third column. ये जो तीसरा कॉलम है तीसरा कॉलम को लेके ही प्रॉब्लम है देखो. तो ध्यान से एक बार नोट करना हम क्या कर सकते हैं ऐसा नहीं. Column 3 tends to column 3 minus A plus B plus C times of column 1. Please note down everyone. Column 3 tends to column 3 minus A plus B plus C into column 1. तो अगर column 3 minus A plus B plus C into column 1 करते हैं अगर तो ध्यान देना क्या होगा. Column 1 1 1 1 ही रह जाएगा. Column 2 B into C C into A into B रह जाएगा. और column 3 में कैसे changes आएगा देखना एक बार. B plus C minus A plus B plus C into 1. If you open the bracket here you get minus A. यहाँ पे मिल जाएगा minus B और यहाँ पे मिल जाएगा minus C. अब एक काम करते हैं लोग, यहाँ से minus A कॉमन ले लेते हैं. अब बताओ तो ये स्टेप के बाद क्या करना चाहिए? Yes. Multiplying ABC in column in row 1, row 2 and Yes. Row 1 tends to A times of row 1, row 2 tends to B times of row 2, and row 3 tends to C times of row 3. और बाद में क्या आ जाएगा? 1 by ABC आ जाएगा. So this will become A ABC A square, B ABC B square, C ABC C square. Then you can take ABC common from column 2. If you take ABC common from column 2, you get ABC 1 1 1 A square B square C square. Now let us now ये कैंसिल हो जाएगा तो आगे माइनस आगे रह गए. अब बताओ मुझे ये प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए. सबसे पहले ये एक ही स्टेप में हो जाएगा. कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज कर देना. कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज कर देना. If you interchange column 1 with column 2, तो आगे एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. Now this is equal to LHS. Copy first. So I want your attention everyone. So we have completed pi now. Let us do J and K. Okay, let us do J and K today. तो J नंबर काफी आसान है देखना एक बार. ये सब सम्स एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं. तो ध्यान से एक बार नोट करना पहला सम. See, just read the heading of the question. Solve for x. मतलब हम लोग को सॉल्व करके यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो ध्यान से एक बार नोट करना. सो कैन यू टेल मी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला ऑपरेशन क्या करना चाहिए? तुम लोग बताओ. इतना डिटरमिनेंट्स करने के बाद ये तो एटलीस्ट तुम लोग बता पाओगे. क्या क्या होगा पहला ऑपरेशन बताओ तो. column C1 plus C2 plus C3. So if we add all the columns, like column 1 tends to column 1 plus column 2 plus column 3, you will find that जो पहला कॉलम है उधर आएगा x plus a plus b plus c, x plus a plus b plus c, x plus a plus b plus c. Alright, next. Now we can take x plus a plus b plus c common from column 1.
taking x plus a plus b plus c common from column 1. इसके बाद देखो यहाँ पे कॉलम 1 में ये तीन एलिमेंट्स 1 1 बना देखो, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। कैसे? रो 1 टेंड्स टू रो 1 minus रो 3 and रो 2 tends to रो 2 minus रो 3. So रो 1 tends to रो 1 minus रो 3, 1 minus 1 0 0, c minus of x plus c is minus x. Same way रो 2 tends to रो 2 minus रो 3, 1 minus 1 is 0, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे minus x. Now let us expand along either row 1 or column 1. That is up to you. Okay? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन से रो या कौन से कॉलम को लेके एक्सपैंड करना चाहते हो। तो प्लस इंटू प्लस माइनस प्लस मतलब माइनस एक्स इंटू हाइड द रोज एंड कॉलम्स। ऑलराइट, मतलब यहाँ पे अपने लोग को कोई प्रूफ नहीं करना है किसी चीज को, यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। प्लीज नोट डाउन 0 into b becomes 0. Okay, 0 into b becomes 0 minus 1 into x becomes x. So we have x plus a plus b plus c. What is minus x into minus x? It is x square. So either x plus a plus b plus c equals to 0 or x square equals to 0. तो यहाँ से बताओ तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? What is the value of x in this case? Can you tell me? minus a minus b minus c. X will be how much? Minus of a plus b plus c. और यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? 0. Because अगर x square 0 है तो फिर x का वैल्यू क्या होगा? 0. ठीक है, तो ये दो आंसर हम लोग को मिला है इस कोऑर्डिनेट इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करके. Alright everyone. Now you can try just one sum now, which is very similar to this. Okay, मैं एक बार बता रहा हूँ कौन सा सम अभी करना है तुम लोग को. It is sum number 2. 2 अभी तुम लोग ट्राई करो और हम लोग जो है नंबर 4 एक बार डिस्कस कर लेंगे. पहले 2 ट्राई करो, मतलब एक दो सम यहाँ से करते हैं and then number will do keep will start किया. चलो कंप्लीट करके इसको नंबर 2 स्टार्ट करें. So what you have to do in sum number J का number 2, can you tell me? Firstly, column 1 tends to column 1 plus column 2 plus column 3. फिर उसमें से Then row add 1 and decay. So you have got two options. You can either add all the columns or you can add all the rows, right? Because you get the same result. You can do column operation or you can do row operation also. है कि नहीं, बताओ एक बार. yes sir. Now question number 4, एक बार ध्यान से question number 4 देखना. So everyone note down. Question number, now just tell me what is the answer of, what are the two, I mean how many answers are you getting number J cut to? Tell me. Sir, 2. एक है तुम्हारा 2/3. 2/3 और एक क्या है? 11/3. Okay, so I think everyone got the answer. 11/3 and 2/3. There are two answers in this of this particular question number J का 2. अब एक बार नंबर J का 4 देखते हैं एक बार. So हाँ तो मेरे 3 आंसर्स आ रहे हैं. So मेरा भी. तो मुझे एक बार सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, हो सकता है बहुत लोग गलती कर रहे हैं. 3 आंसर्स आना चाहिए इसका मतलब 0, इसका मतलब 3 आंसर में 0 भी एक होगा आंसर. No Yes. sir, मेरे अच्छा तो मैं एक बार सॉल्व करता हूँ. So let us add all the rows or all the columns. That is up to you. So suppose if I add all the columns, you'll get 3x minus 2, 3x minus 2, 3x minus 2. Let us take 3x minus 2 common from column 1.
then rho 1 tends to rho 1 minus rho 3. So you get 0, 0. Then we have 11 minus 3 is 1. Sorry, rho 2 tends to rho 2 minus rho 3. Okay. So which operation I have used here? And I have used here column 1 tends to column 1 plus column 2 plus column 3. ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया rho 1 tends to rho 1 minus rho 3 and rho 2 tends to rho 2 minus rho 3. देखो ये सब चीज तुम लोगों को समझ में आ जाता है तो ज्यादा मैं इसमें टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद रो 1 को लेके एक्सपांड कर या फिर कॉलम 1 तो फिर बच जाएगा 0 3x minus 11 1 3 1. Expanding about row 1. दो आंसर तो है, तीन आंसर तो शायद नहीं है। कर दिया था सब्ट्रैक्शन में। Okay, so you are getting two answers only. Means you are getting three answers, but the other two answers are equal. I mean, you get the same value of x. So either x equals to 2 by 3 or x equals to 11 by 3. मतलब बाकी जो दो आंसर है, ठीक है, तीन आंसर आ रहा है, लेकिन जो बाकी दो आंसर है वो सेम ही है, 11 by 3. Okay, please check once again. Now the next question is, everyone note down. Show that x equals to 2 is a root. What do you mean by root? Can anyone explain me? कि root term का मतलब क्या होता है? मतलब x इक्वल्स टू 2 अगर हम लोग उस इक्वेशन में लगाएगा तो फिर वो इक्वेशन का वैल्यू 0 आएगा। मतलब रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब अगर वो वैल्यू को वहां पे पुट करें हम लोग तो वो उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। लेकिन एक बार तुम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ना एक बार। Show that x equals to 2 is the root and also solve it completely. What do you mean by also solve it completely? मतलब पहला इसमें क्वेश्चन है कि शो करो कि x equals to 2 इसका सॉल्यूशन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करके और भी शायद और भी वैल्यूज मिलेगा, वो भी वैल्यूज निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, नॉर्मली सम को सॉल्व करके और हम लोग x का वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर? वी विल जस्ट सॉल्व इट नॉर्मली, जैसे हम लोग बाकी सम्स को सॉल्व करें वैसे इसको भी सॉल्व करके x का वैल्यू निकालें। तो देखना अगर x का वैल्यू 2 आ गया तो ये तो प्रूव हो गया, और बाकी भी जो आंसर्स आ जाएंगे, मतलब हम लोग, मतलब देखो बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे कि इसमें x का वैल्यू 2 पुट करके और उसके बाद डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे और देखेंगे कि 0 आ रहा है। बट आई विल से डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग दैट। इट इज बेटर यू डायरेक्टली सॉल्व दिस इक्वेशन और देखो कि x का क्या-क्या वैल्यूज आ रहा है। मान लो x का वैल्यू आ रहा है 2 1 and 3, तो प्रूव हो गया ना कि x equals to 2 इसका रूट है, और बाकी जो आंसर्स भी लाना है वो भी मिल गए साथ में। ठीक है, सो इट इज बेटर you solve this determinant and find out, I mean this equation and find out the values of x. Try first. तो बताओ तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। यस, ट्राई करो एक बार। So everyone note down. Let me just complete this up. So we find that if we add column 1 and column 3, column 1 पे elements identical आ जाएंगे। क्या आएगा, x minus 1, x minus 1, x minus 1। Okay, column 1 tends to column 1 plus column 3. Let us take x minus 1 common from column 1. ओके, नाउ इसके बाद हम लोग दो जीरो बना सकते हैं। रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 3 एंड रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3।
So row 1 minus row 3, 1 minus 1 will be equal to 0. Here you will get 6 minus 2x. Here you will get minus x minus 3. 0 minus 5x minus 5. Okay. Now let us expand along column. So you get 1 into इसका rows and columns को अगर हम hide करते हैं okay, then we can solve this. Is minus 5 into 6, minus 6 minus 2x is 30 plus 10x minus 5x square minus 15x. So we have x minus 1 into minus 5x square, then minus 15x plus 10x becomes minus 5x plus 30. So either x minus 1 equal to 0 or minus 5x square minus 5x plus 30 equals to 0. यहाँ से x का वैल्यू 1 मिला. अब इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले मैं minus 5 कॉमन लेता हूं. Okay, and let us factorize. So either x equals to minus 3 or x equals to, मतलब हम लोग को x का कितने सारे वैल्यूज मिला? हम लोग को x का 3 वैल्यूज मिला. x equals to 1 minus 3 and 2. ठीक है, 3 आंसर्स मिले. और हम लोगों को क्या प्रूव करना था? शो दैट x equals to 2 is the root. तो ऑब्वियसली इसको इक्वेशन को सॉल्व करके कितना रूट्स मिलता है? 3 रूट्स. और ये हम लोग को शो करना था कि x equals to 2 is the root of the equation. तो ये प्रूफ भी हो गया और हम लोग को जो आंसर निकालना था वो आंसर भी आ गया. ऑलराइट, हम लोग को यहाँ पे जो प्रूफ करना था वो प्रूफ भी हो गया कि x equals to 2 is the root and solve it completely. तो completely solve करके जो है क्या मिला? x का वैल्यू 1 है minus 3. तो एक बार कॉपी करो. एवरीवन नोट डाउन. जो मैंने यहाँ पे इसको एक्सपैंड किया, इसको सॉल्व किया ना, इसको हम लोग और इसको सिंपल बना सकते थे. देखो, तो ये डिटरमिनेंट सीखने का फायदा यही है कि यहाँ पे अगर हम इधर इसको -2 कॉमन लेके x + 3 लिख सकते हैं. माइनस कॉमन लेके x + 3. अब यहाँ पे हम लोग x + 3 कॉमन ले सकते हैं. चेक वंस. We can take x + 3 common. So if I take x + 3 common, what is left? You have -2, -1, -5x and -5. तो ये ज्यादा इजी. देखो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, इस मेथड से किया तो फैक्टराइज करना पड़ा ना, और यहाँ पे उन्होंने डिटरमिनेंट का सारे प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया तो फैक्टराइज नहीं करना पड़ा. थोड़ा आसान हो गया. देखो स्टेप्स कॉपी करने. अब सी नंबर के. In number K, you have to find out the area of triangle whose vertices are given. Everyone note down. Whose vertices are given to you. तो सपोज मान लो किसी भी ट्रायंगल का हम लोग को एरिया निकालना है, लेकिन याद रखना यहाँ पे मेथड मेंशन होगा एग्जाम में. ये मत सोचना कि यहाँ पे हम लोग को मेथड लिखा नहीं रहेगा, बिकॉज अगर मेथड मेंशन ना हो तो हम लोग कोई भी मेथड से एरिया निकाल सकते हैं.
बट यहाँ पे हम लोग को मेथड जरूर लिखा रहेगा कि कौन से मेथड से हम लोग को एरिया निकालना है। ऑलराइट एवरीवन, तो सपोज मान लो ये क्वेश्चन है कि ये ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस पता है और हम लोग को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सो एवरीवन नोट डाउन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC can be easily calculated by using this formula. Note down, half into determinant. इस determinant के अंदर क्या लिखना है, ध्यान रखना, पहला रो में पहला वर्टिसेस को लिख देना, सेकेंड रो में सेकेंड वर्टिसेस और थर्ड रो में थर्ड वर्टिसेस लिख देना, और जो तीसरा कॉलम है उसको 1 1 1 लिख देना। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, करना क्या है तुम लोगों को, तीसरा कॉलम में 1 1 1 लिख देना। तो पहला रो जो बचा है मतलब 3, देखो 3 to 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट में क्या करना है तुम लोगों को, तीसरा कॉलम को 1 1 1, उसके बाद पहला रो सेकंड रो थर्ड रो में क्या लिखना है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे वर्टेक्स सी। ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुमको पहले वर्टेक्स ए लिखना है फिर वर्टेक्स बी लिखना है फिर वर्टेक्स सी लिखना है, ऐसा इट्स नॉट कंपल्सरी। इसके बाद इसका नॉर्मल एक्सपेंशन कर लो, एक्सपेंशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम 2 0 लाके एक्सपैंड करो या डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दो, दैट इज अप टू यू। तो सपोज मैं इसको अगर एक्सपैंड करूं तो क्या आएगा, 5 into 4 plus 6 minus 4 into minus 2 minus 2 plus 1 into 12 minus 8, और इस पूरा को मॉड्यूलस के अंदर लिखा है, डिटरमिनेंट नहीं, ठीक है, ये मॉड्यूलस के अंदर। क्यों बताओ तो मैंने मॉड्यूलस के अंदर लिखा, बिकॉज एरिया जो है कभी भी एरिया किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर मान लो इस पूरा को सॉल्व करके अगर एरिया नेगेटिव आता है, अगर मान लो इस पूरा को सॉल्व करके अगर एरिया नेगेटिव आता है तो वो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे। ऑलराइट एवरीवन, अगर मान लो एक्सपेंशन के, देखो ये डिटरमिनेंट है, ये मॉड्यूलस साइन है, मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर क्यों रखा, अगर मान लो ये पूरा एक्सप्रेशन को सॉल्व करके अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। नाउ लेट अस सॉल्व दिस, 6 plus 4 is 10, 10 5 are 50, 16, and here we have 4. तो 70 70 का मॉड्यूलस क्या होगा, 70 होगा। सो द आंसर इज 35 स्क्वायर यूनिट। ऑलराइट, दिस इज योर आंसर। एक बार ये कंप्लीट करने के बाद एवरीवन लिसन इन, यू ट्राई फ्यू क्वेश्चंस जो मैं भी दे रहा हूं। नंबर 2 करो भी, 2 का पहला सम और नंबर 3 वैसे 2 सम करो। ओके, 2 so everyone note down number 2, k ka number 2, show that the points are collinear. So how you are going to do this sum, can you tell me, using determinant method, how you are going to show that the points are collinear, can you tell me? Will prove that area is 0. It will consider that these 3 points are the points of a triangle, are the vertices of a triangle, right? हम लोग पहले assume कर लेंगे कि जो तीनों points है ये ट्रायंगल का एक ट्रायंगल का vertices है। अगर vertices इसका मतलब इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एरिया निकालते हैं और अगर एरिया इसका 0 आ जाता है, ठीक है, इसका अगर एरिया सपोज 0 आ जाता है, you know after what is the result after expansion, can you tell me? 0 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. क्योंकि 0 आ रहा है इसका मतलब hence ABC, A, B and C are not the vertices of a triangle. But are collinear points. Okay? ठीक है, तो हम लोग पहले अज्यूम कर लेंगे कि ये तीनों एक ट्रायंगल का वर्टिसेस है और एरिया निकालना है। बट अगर एरिया इसका 0 आ गया, इसका मतलब अगर ये ट्रायंगल का वर्टिसेस होता तो कुछ ना कुछ तो एरिया जरूर आता, क्योंकि 0 आया आंसर, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाइन कर रहे हैं, एंड हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर
3 भी सेम वही कर रहे हैं। 3 में बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है। Everyone note down. Since 1, -5, -4, 5 and lambda, 7 are collinear points. So it implies will be equals to how much? Same. अब बस इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन, तुम या तो 2 0 बना के एक्सपैंड करो या डायरेक्ट एक्सपैंड करो। R2 R1 minus R3, so ये हो गया 1 minus lambda minus 12 0 let us expand along column 3. So if you expand along column 3 you get 1 into, eliminate the rows and columns, ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करो। So we are getting minus 10 lambda minus 50 equals to 0. That is, what is the value of lambda you are getting? Is it 5 minus 5? Check once. Yes, sir. Yes, sir. So this is your answer. तो काफी इजी टॉपिक था, लेकिन हाँ नया टॉपिक था ये। इजी तो था लेकिन ये नया टॉपिक था, इसलिए मैंने पहले सोचा इसको ना करा। कॉपी करने पर जिसका ये डाउट है। Everyone note down. Also do question number 4. सर हम लोग के पास So everyone note down. See, find the equation of the line joining the points A 1, 3 and B 0, 0. तो हम क्या करेंगे देखना एक बार, क्योंकि हम लोग को लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हम लोग तीसरा जो पॉइंट है वो क्या करेंगे, x, y लेंगे। दिस इज क्लियर एवरीवन? हम लोग जो तीसरा पॉइंट है वो हम क्या ले लेंगे, x, y, and you know that all these 3 points lie on the same straight line, so we know that its determinant value will be equal to how much? 0. अब बस इसको सॉल्व करते हैं। Let us expand along row 2. समझ में आया? तो बात देखो, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है उसका हम लोग को इक्वेशन निकालना, बट बाय यूजिंग विच मेथड? डिटरमिनेंट मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार। हम लोग को कोलिनियर वाला कांसेप्ट पता है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया 0 होता है। तो तीसरा पॉइंट को मैंने x, y ले लिया और मैंने ये डिटरमिनेंट वाले कांसेप्ट यूज करके और मैं इसको इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, इसका यू नो दैट कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने से उसका एरिया क्या होता है, 0। तो मैंने क्या किया, 3 पॉइंट्स को लेके तीसरा पॉइंट x, y लेके और हाफ इनटू एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर, आई मीन वो जो कांसेप्ट है लगा के इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको एक्सपैंड कर दो बस रो 2 को लेके। अगर हम रो 2 लेके एक्सपैंड करें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1 इनटू hide the rows and columns, so you have y minus 3x equal to 0, that is 3x minus y equal to 0 is the equation of straight line. ओके, इसके बाद देखो इसके अंदर सेकंड पार्ट है और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये ऑलरेडी एक शायद
19 में शायद आया है ये वाला सम। देखना एक बार उसके बाद सेकंड पार्ट, find k if dk, 0 is the point such that area of triangle ABD is 3 square. Now note down, we know that area of triangle ABD is equal to 3 square unit. So half times determinant of ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको एक्सपैंड करें सेकेंड रो को लेके तो मॉड्यूलस के अंदर आएगा। यू रिमेंबर व्हाई? क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन को एक्सपेंशन के बाद मॉड्यूलस के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी -1 into 0 minus 3k, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3k equals to 6। मुझे कोई बता सकता है कि अगर 3k का मॉड्यूलस इक्वल टू 6 है तो बताओ तो नेक्स्ट स्टेप में 3k क्या होगा? यस प्लस माइनस 6। यस, बिकॉज मॉड्यूलस जब हटेगा तो राइट में प्लस माइनस आ जाएगा। सो ईदर 3k equal to 6 और 3k equal to -6। तो यहां से k का वैल्यू 2 और यहां से k का वैल्यू -2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस ट्रायंगल का एरिया अगर 3 दिया हुआ है तो बस इसको एक्सपैंड करके इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। बट याद रखना ये मॉड के अंदर रखना, क्योंकि इसका एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, एरिया किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसी का क्या, ठीक है। तो इसलिए मैंने मॉड के अंदर रखा है। उसके बाद जब मैंने मॉड हटाया तो प्लस माइनस है। एंड रिमेंबर दिस, इस कांसेप्ट की वजह से उस ईयर में मेरे पास बहुत लोगों को 99 मिला था 100, क्योंकि बहुत लोग मॉड हटाने के बाद डायरेक्ट सिर्फ +6 लिख के और एक आंसर निकाला था। बस ये वाला आंसर नहीं निकालने की वजह से मैं बता रहा हूं तुमको, बहुत सारे लोगों को 8 से 10 लोगों को 99 मिला। याद रखो। सो प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज मतलब बहुत लोग शायद उस ईयर में सोचा भी नहीं था कि इतना सिंपल एरिया से मतलब पोर्शन से ये चीज आ जाएगा। मतलब बहुत लोग इस टॉपिक को इग्नोर करता था एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला डिटरमिनेंट्स मेथड से। तो एक बार ये फटाफट कॉपी करो।